بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر اور میں ہوں ہیرا جاوید۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لانے کے معاملے پر پی ڈی ایم جماعتوں کے 5 اہم قائدین ان ہاؤس تبدیلی کے مخالف ہیں، جبکہ 4 قائدین نے حمایت کر دی ہے۔ پی ڈی ایم کے کئی رہنماؤں نے پیپلز پارٹی سے وضاحت بھی مانگ لی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے بیان پر پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں نے سربراہی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، ساجد میر، عبد المالک بلوچ، اویس احمد نورانی ان ہاؤس تبدیلی کے مخالف نکلے، جبکہ ذرائع کے مطابق اختر مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی قومی وطن پارٹی ان ہاؤس تبدیلی کی حامی ہے۔ مسلم لیگ نون نے بلاول بھٹو زرداری کے ان ہاؤس تبدیلی کے بیان پر دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنا لی۔ نون لیگ کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ان ہاؤس تبدیلی کے مخالف رہے ہیں۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت کے خلاف فیصلہ کن لانگ مارچ کرنا چاہیے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی پرانی تجویز ہے۔ احسن اقبال کے مطابق پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں تجویز پر بحث کر کے اتفاق رائے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر بلاول کے پاس تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر ہے تو ضرور پیش کریں۔ حکومت نے اس براڈ شیٹ کے اوپر جس طریقے سے عمل درآمد کیا، جس تیزی کے ساتھ اس کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو پھرتیاں دکھائیں کہ ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا نہیں تھا، مطلوبہ رقم لندن میں ہائی کمیشن کے آفس کے اندر جمع کرا دی گئی تاکہ اس کے ذریعے یہ یقینی بنایا جا سکے کہ براڈ شیٹ کو یہ پیسہ مل جائے گا۔ تو آپ ان دونوں کا فرق دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی پھرتی براڈ شیٹ کے پیسے لندن پہنچانے میں تھی، کیا حکومت کا فرض نہیں تھا کہ کم از کم اس سے آدھی پھرتی جہاز کی اس پیمنٹ کے بارے میں دکھاتے کہ جس کے ساتھ پاکستانی قوم کا تشخص، پاکستانی قوم کی عزت اور پاکستانی قوم کے مسافروں کا سفر منسلک تھا۔ تو یہ دو باتیں واضح کرتی ہیں کہ یہاں پر اس پیسے کو منتقل کرنے میں مفادات تھے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ تابعداری، تاریخی نااہلی اور نالائکی کی سزا پاکستان بھگت رہا ہے۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اناڑیوں کے کھیل تماشے کی وجہ سے ملک کو دنیا بھر میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے دنیا بھر میں پی آئی اے کے پائلٹس کو رسوا کروایا اور اب ایئر لائن کو اس مقام پر لے آئے ہیں۔ پاکستان نے ایسے دن کبھی نہیں دیکھے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ براڈ شیٹ کیس میں جو بھی قصوروار ہوا اسے پھکی ملنی چاہیے۔ جسٹس ریٹائرڈ عصمت سعید پر اعتراض ہے تو کیا جسٹس قیوم اور جسٹس افتخار چودھری کا نام دے دیں؟ شیخ رشید نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو بالغ ہو گیا ہے، انہوں نے عدم اعتماد والی بات ٹھیک کہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے باہر ہم نے فری ہینڈ دیا تھا پی ڈی ایم کو، اگر اسی قسم کا وہ سلوک اور رکھیں جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر رکھا ہے تو ہم ان سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت اچھی بات ہے وہ سینٹ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے وہ ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی ریزائن پوسٹ پون کیا ہے، لیکن 3 باتیں میں مولانا فضل الرحمان سے کہنا چاہتا ہوں۔ نہ یہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی ایجنڈا رکھتی ہے، نہ کوئی ختم نبوت میں ترمیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور کشمیر کی آزادی کے لیے آپ چیئرمین کشمیر کمیٹی رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ عمران خان کی سروسز ہیں اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں اور ہر جگہ پر کشمیر کا کیس اٹھایا اور ہٹلر اور موسولینی کے مترادف مودی کو قرار دیا ہے۔ براڈ شیٹ پہ جسٹس عظمت ان کو قبول نہیں ہے تو بتائیں کس کو کون قبول ہے؟ چودھری افتخار قبول ہے، ان کو جسٹس قیوم قبول ہے، ایک ایکسٹرا آرڈینری اور ایک عظیم جج اور جس کی ایک بڑی ریکارڈ ہے۔ بالآخر اس کیس نے بڑے پیمانے پہ اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے۔ ابھی تو اس کیس میں سے چیزیں نکلنی ہیں، 45 دن یا 3 مہینے کے اندر اس کے فیکٹس اینڈ فگر لکھنے ہیں۔ آخر میں جو فیصلہ ہونا ہے کہ اس کیس نے کیا رخ اختیار کرنا ہے، اس میں اسی طرح 80 سے
85 से 100 मिलियन डॉलर की नई प्रॉपर्टीज आ रही हैं। और अगर जिस किसी ने भी कोई जुर्म किया है उसका तल्लक किसी तरफ से क्यों भी ना हो, किसी तरफ से क्यों ना हो, उसको फकी मिलनी चाहिए। मजीद आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि शौकत खानम अस्पताल कराची के बेसमेंट का काम फिर से तेज कर दिया गया। यह अस्पताल पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद होगा। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट पर शौकत खानम अस्पताल कराची के तामीरी काम की तस्वीर शेयर करते हुए अपने पैगाम में कहा कि शौकत खानम अस्पताल कराची के बेसमेंट का काम फिर से तेज कर दिया गया है। कोरोना के बायस बेसमेंट का काम सुस्त रवि का शिकार था। शौकत खानम अस्पताल कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद अस्पताल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वजीर अली ज़ैदी आमने सामने आ गए। दोनों ने वजीर आजम को एक दूसरे के रवैयों की शिकायत कर दी। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हूँ, लिहाजा आइंदा इजलास में अली ज़ैदी संजीदगी का मुजाहरा करें। वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने भी वजीर आजम को जवाबी खत लिख दिया कि मुराद अली शाह ने शाइस्तगी की हदूद फैलाकर वजीर आजम को खत भिजवाया है। कराची में तरक्याती सरगर्मियों के लिए निगरान कमेटी बने 6 माह से जायद हो गए। सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुंतकिली का पूछने पर मौसूफ बरहम हुए। खत में अली ज़ैदी ने कहा कि कराची का कचरा कैसे उठाना है और नाले कैसे साफ करने हैं, इस पर कमेटी को कोई इजलास करना पड़े। बुनियादी शहरी सहूलतों पर कई इजलास मुराद अली शाह की नाअहली और शर्मनाक निकम्मेपन की इलामत है। लिहाजा मुराद अली शाह को वफाकी हुकूमत और कौम से किए वादों की पासदारी का पाबंद बनाया जाए। खत में कहा गया कि कमेटी रुकन के बतौर मंसूबों पर पेशरफ और तकमील में ताखीर पर सवाल पूछना मेरा बुनियादी हक है। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं कि वजीर आला सिंध का वजीर आजम को लिखा जाने वाला खत किसी और के हाथ कैसे लगा, मीडिया को कैसे जारी हुआ। मीडिया टॉक करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मीटिंग में तलखी की बात भी किसी से शेयर नहीं की गई थी। अली ज़ैदी की सियासी संजीदगी से सब वाकिफ हैं, उन्हें काबीना और कमेटी में नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने खत में लिखा है अली ज़ैदी साहब ने, उसमें तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख दी हैं जो शायद नहीं लिखनी चाहिए थी। उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए हैं जो रिवायती तौर पर पीटीआई का एक शेवा है। अली ज़ैदी साहब ने इंतहाई नामुनासिब अंदाज में चीफ मिनिस्टर से ये कहा कि वो आप कब करेंगे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, और शायद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहा कि डिवॉल्व कब करेंगे। सीएम साहब ने कहा कि हम उस पर काम कर रहे हैं, हम कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं आप बताएं कब करेंगे। तो जाहिर है सीएम साहब ने ये जरूर कहा कि हम इस तरह से आपको जवाब दे तो नहीं, ये हमारा काम है, हम करेंगे। इस पर वो जिस तरह उनका ये रिवायती अंदाज है वो खड़े हो गए और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके बाद वो बाहर चले गए। चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग के तमाम शुरुका में मौजूद हैं और जो मुझे भी हैरत हुई, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब आम तौर पर इस किस्म की बदजुबानी को बर्दाश्त करने के आदी नहीं है, लेकिन उस मीटिंग में उन्होंने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और उनकी बदतमीजी का जवाब नहीं दिया। और वो असद उमर को मुखातिब करके ये कहते रहे कि ये अंदाज नहीं है किसी वफाकी वजीर का मीटिंग में किसी चीफ मिनिस्टर को एड्रेस करने का, और वो साहब जाते जाते भी अपनी जबान चलाते हुए बाहर चले गए। चीफ मिनिस्टर साहब ने जवाब में एक लफ्ज ऐसा नहीं कहा जिसको आप बदतमीजी कहें, जिसको आप नामुनासिब जबान कहें। अली ज़ैदी के जाने के बाद उन्होंने असद उमर साहब से गिला जरूर किया कि ये लैंग्वेज, ये अंदाज शायद आपकी कैबिनेट में होता हो, हमारे यहाँ इस किस्म की जबान इस्तेमाल नहीं होती। और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की इंक्वायरी पर अकाउंट ब्लॉक करने को खिलाफे कानून करार दे दिया। फैसले में बताया गया कि नैब इंक्वायरी पर दफा 23 के तहत अकाउंट ब्लॉक कराना खिलाफे कानून है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नैब इंक्वायरीज पर मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स रोकने पर फैसला सुनाया।
फैसले में कहा गया कि नैब के इंक्वायरी पर असासे मुंजमद करना हो तो दफा 12 के तहत ऑर्डर करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जारी करदा फैसले के मुताबिक महज इल्जाम पर बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करना बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तफ्तीशी एजेंसी की ताखीर की वजह से शहरी को खर्च के लिए अकाउंट से रकम निकालने से कैसे रोका जा सकता है? अगर गुनाहगार को सजा देना रियासत का काम तो शहरी को अपनी रकम इस्तेमाल का हक देना भी जरूरी है। फॉरेन फंडिंग केस की खुली अदालत में समाअत के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आमादगी जाहिर कर दी। कहा कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही खुली अदालत में समाअत होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात के मामले पर फिर वजाहत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन खुली समाअत के बारे में अपना मौकिफ पहले ही जारी कर चुका। स्क्रूटनी कमेटी पहले की तरह अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई ओपन नहीं होगी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन मामले की खुली अदालत में समाअत करेगा। साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने हुकूमत को 5000 का नोट बंद करने की तजवीज दे दी। शब्बर जैदी ने अपने ट्वीट में तजवीज दी कि 1 जुलाई 2021 से 5000 का नोट बंद कर दें और इस तब्दीली से 2 माह पहले आगाह करें। इस इकदाम की मुखालफत करने वालों को इसके गलत इस्तेमाल का अंदाजा नहीं है। इससे उनके मुफादात खत्म होंगे। साबिक चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि इससे मशरत बेहतर होगी और बैंककारी मुस्तहकम होगी, जबकि रिश्वत सतानी मुश्किल हो जाएगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं फॉरेन फंडिंग पर चलने वाली जमातों पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाई जाए। 3 साल से चोर चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा जा चुका है। इनका एतराफ जुर्म इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। अब इनको सजा देने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। एक एक ऐसे पैसे का हिसाब लिया जाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिलेक्टेड टोले के खिलाफ जल्द इन्हें अदालतों में मुकदमा चलाएंगे। इन चोरों का योमे हिसाब आ चुका है। फरूख हबीब कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग पर पीटीएम का शोर शराबा बिला जवाज है। वजीर आजम ने इनकी बॉल उठाकर बाहर फेंक दी है। आपकी पार्टी के अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आया, ये अपना हिसाब देने से डर रहे हैं। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्रायर रेलवे फरूख हबीब ने फैसलाबाद में फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, पर्ची चेयरमैन वालिदा की किताब पढ़ लें। मरियम सफदर सर्टिफाइड झूठी साबित हो चुकी। शरीफ खानदान ने पाकिस्तानी अवाम के अरबों का नुकसान पहुंचाया, जबकि इमरान खान इनको किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे। ब्रॉड शीट इनकी फ्रॉड शीट है। फारूक हबीब का कहना था कि फॉरेन फंडिंग का ताना देने वाले पहले अपने खानदान को देखें। आपकी पार्टी फंड्स में ठेकेदारों ने पैसे जमा कराए। इनके पार्टी अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया। इनके कारोबार और पैसे बैरूने मुल्क हैं। आपकी लूटी हुई दौलत मुल्क से बाहर है। ये लोग अपना हिसाब देने से डर क्यों रहे हैं? वफाकी वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को अपनी मंजिल का पता नहीं कि इससे किस तरफ जाना है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीडीएम बगैर मंजिल के रवा दवा है। पहले इस्तीफे दे रहे थे, फिर लॉन्ग मार्च और अब तहरीक अदम एतमाद। मुफादात की बुनियाद पर बनने वाला इत्तेहाद कभी कामयाबी से हमकनार नहीं हो सकता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि लीगी रहनुमा झूठ बोलकर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। अवाम के सामने उनकी असलियत अयां हो चुकी है। आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। कौमी दौलत लूटने वालों को कभी एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम का कोई एजेंडा नहीं, अवाम ने इंतशार की सियासत को रद्द कर दिया। पंजाब में कानून की पासदारी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वजीर कानून राजा बिशारत ने मुलाकात की। अमन आमा की सूरत हाल, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन ने 2.5 बरस एहतजाज किया, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवामी खिदमत। पीटीएम का कोई एजेंडा नहीं। अवाम ने अपोजिशन के इंतशार की सियासत को यकसर रद्द कर दिया। यह अनासर अवाम में अपनी साख खो चुके। वजीर आजम कौम की उम्मीद है। इमरान खान की क़यादत में नए पाकिस्तान की मंजिल की जानिब बढ़ते रहेंगे।
फिरदौस आशी कमान कहती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जदीद दौर के करप्ट जादूगर हैं। चंदे के पैसे से अरबों की जायदादें फ्रंट मैन्स के जरिए बनाई। मुआवन खसूसी फिरदौस आशी कमान ने अपने ट्वीट में कहा कि हर दौर में अवाम को वरगलाने वाले मौलाना की सियासत मफाद परस्ती और फसाद से भरी पड़ी है। अरबों की करप्शन बचाने के लिए मुल्क की जड़ें खोखली करने पर बजिद हैं मौलाना और PTM के शोर शराबे। आहुबका की असल वजह इनके अपने स्याह करतूत और करप्शन के वो पहाड़ हैं जिनके बचाव के लिए वो टोला दर बदर टक्करे मार रहा है। फिरदौस आशी कमान का कहना था कि कप्तान की हुकूमत में इनकी चीखें मजीद बुलंद होंगी। मुल्क की दौलत भेड़ियों की तरह लूटने वालों से पाई पाई का हिसाब लेना हमारे मंशूर का हिस्सा है। और यहाँ आपको बताएं कि फयाजुल हसन चौहान कहते हैं PDM की तारीखी नाकामी के बाद लीगी क़यादत आए बाएं शाही की पॉलिसी पर कारबंद है। फयाजुल हसन चौहान ने एक बयान में कहा कि जलसियों, लॉन्ग मार्च, इस्तीफों के बाद अब लीगी कायदीन रोजमर्रा हुकूमती कामों पर तनकीद में मसरूफ हैं। बेगम सफदर अवान और नारोवाल के अरेस्टों को ब्रॉडशीट की शक्ल में एहतसाब का कद्दू नजर आ रहा है। हमजा शहबाज ने भी एहतसाब के डर से अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जमानत मंसूख करवा ली है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अब अपोजिशन अवाम के सामने कभी इसराइल मुर्दाबाद और कभी PIA का चूरन बेच रही है। 70 साल में इदारों की जड़ें खोखली करने वालों को अब एक मौका और चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन चाहती है कि ब्रॉडशीट पर रफीक ताडर, इफ्तिखार चौधरी और मलिक कयूम पर मबनी कमीशन तश्कील दिया जाए। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि जब भी ऐसे लोग एहतसाब करेंगे जिनको खरीदना मुश्किल होगा, इनकी चीखें आसमान तक जाएंगी। यही अब हो रहा है। आपके पास दो रास्ते हैं, या पैसे वापस करें या जेल काटें। फवाद चौधरी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नई क़यादत सामने लाए। दो खानदानों का मुस्तकबिल तारीख है। जब तक सियासी जमातों में लीडरशिप बदलने का मैकेनिज्म नहीं आता, मुल्क में जमहूरियत नहीं पनप सकती। पार्टी को शख्सियात से ऊपर होना चाहिए। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 43 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,247 हो गई। मजीद 1,927 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,31,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 4,84,500 अफराद सेहतयाब, जबकि 35,000 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 4,537, सिंध में 3,875, खैबर पख्तूनख्वा में 1,826, जबकि बलूचिस्तान में 192, आजाद कश्मीर में 252, इस्लामाबाद में 463 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 21,19,000 हो गई। मरीजों की तादाद 9,90,00,000 तक जा पहुंची। 7,10,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 4,25,000, ब्राजील में 2,16,000, भारत में 1,54,000, मेक्सिको में 1,48,000, रूस में 69,000, फ्रांस में 73,000, बरतानिया में 96,000 और सऊदी अरब में 6,346 अमवात हो चुकी हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल। रोए धोए सब हार के बारी,
इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूँ आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ, मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर पीर का जुमा 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पर। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। सहाफत में मेरे 35 साल। वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां। सच और झूठ के रिश्ते, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के तहतहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। वेलकम बैक। मुस्तफा कमाल कहते हैं कराची मुतनाज़ा मर्दमशुमारी पर खामोश नहीं रहेगा। अदादोशुमार दुरुस्त ना हुए तो हर सतह पर लड़ाई होगी। विफाक इत्तेहादियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। MKM जैसी जमात को आज तक नैब का नोटिस क्यों नहीं आया? पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुत्ताज़े मर्दमशुमारी को कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। सब कह चुके हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ से जायद है। हम कराची के मसाइल हल ना होने पर मायूसी का शिकार हैं। नादरा के मुताबिक कराची में 2 करोड़ 40 लाख शनाख्ती कार्ड जारी हो चुके। मुस्तफा कमाल का कहना था कि 13 बरसों से एक बस नहीं दी, शहर को कचरा बना दिया। आपने अस्पताल और यूनिवर्सिटी उजाड़ दी, हम खामोश रहे। यहाँ से इंडस्ट्रीज उजाड़ दी, हम खामोश रहे। मर्दमशुमारी पर खामोश रहे तो तारीख मुआफ नहीं करेगी। और यहाँ आपको अहम खबर देते चलें कि मंडी बहाउद्दीन गोजरा के इलाके में भाई ने सगे भाई को कातिल कर दिया। मुलजिम सफीर ने अपने सगे भाई आमिर को बेलचे के वार करके कातिल किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल बरामद कर लिया। वाकया घरेलू झगड़े पर पेश आया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर अवान। मुदस्सिर अवान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल हीरा, ये अफसोसनाक वाकया मंडी बहाउद्दीन के नवाई मौजा गोजरा में पेश आया है, जहाँ पर छोटे भाई ने सफीर ने जो है अपने बड़े भाई आमिर से घरेलू तनाजा जो है उसका चल रहा था। झगड़ा बढ़ने पर सफीर ने बेलचे के जो है वो वार करके बड़े भाई को जो है वो मौत के घाट उतार दिया, जिसका DPO सैयद अली रजा ने जो है वो नोटिस लिया और थाना गोजरा पुलिस ने जो है फौरी तौर पर
जो है मुलजम को आला कत्ल समेत जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए जो है वो अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है और मजीद तफ्तीश जो है वो जारी है। मुदस्सिर अवान ये भी बताएगा कि झगड़े की क्या वजह बताई जा रही है? इनका जो है काफी दिनों से जो है वो अपना घरेलू झगड़ा है वो चल रहा था। आज जो है जब वो तलश कलामी बढ़ी तो जो छोटा भाई सफीर है उसके जो है वो बेलचे के वार करके जो बड़े भाई को है वो मौत के घाट उतार दिया उसको। जी ये भी बताएगा कि जिस भाई ने कत्ल किया उसको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, इसका जो नोटिस है डीपीओ सैयद अली रजा ने फौरी तौर पर नोटिस लिया है और कार्रवाई की हदायत की थी थाना गोजरा पुलिस को, जिसने मौके पर पहुंचकर आला कत्ल समेत जो है वो मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। मुदस्सिर रवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ के बैरून मुल्क कारोबारी शराकतदारी के भी शवाहिद नैब को मौसूल हो गए। ख्वाजा आसिफ ने दुबई में जापानी रेस्टोरेंट जिन में शराकतदारी की। शराकतदारी में ख्वाजा आसिफ को 136 मिलियन बैरून मुल्क से मौसूल हुए। गैर मुल्की रेस्टोरेंट से शराकतदारी 2012 में खत्म की। ख्वाजा आसिफ ने दुबई की कंपनी आयोमेप्को में मुलाजमत भी की जो 2017 में तर्क कर दी थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो इन एक्शन कार्रवाइयों में मजीद तेजी कर दी गई। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजल रहमान के भाई को तलब कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो खैबर पख्तूनख्वा के एलामी के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के भाई जियाउल रहमान को साल 2007 में गैर कानूनी तौर पर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस में शामिल किया गया। इसके अलावा नैब ने साबिक चीफ सेक्रेटरी साहबजादा रियाज नूर, साबिक सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट साहब जान और साबिक सेक्रेटरी गवर्नर अहमद हनीफ औरंगज़ई को भी तलब किया है, जबकि इन तमाम अफराद को 27 और 28 जनवरी को पेशावर दफ्तर पेश होने की हिदायत की गई है। जराए का कहना है कि नैब ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ 2 इंक्वायरियां शुरू कर रखी हैं। कुआलालंपुर में पीआईए का तैयारा जब्त करने के मामले पर लंदन हाई कोर्ट में समाअत। पीआईए $7 मिलियन अदा कर चुकी, $5,80,000 अदा करना है। फरीकैन में रकम की अदायगी पीआईए के खिलाफ किसी हुक्म के इजरा के बगैर करने पर इत्तफाक किया गया। समाअत में फरीकैन के वकला ने इत्तफाक किया कि पूरी रकम की अदायगी पीआईए के खिलाफ किसी हुक्म के इजरा के बगैर होनी चाहिए। तैयारा लीज पर देने वाली कंपनी के वकील ने अदालत को बताया कि पीआईए की तरफ से $5,80,000 अदा न करने पर अदालत आना पड़ा। पीआईए के वकील ने अदालत में इस्तदा की कि कोरोना वबा के बाद इंडस्ट्री की ज़बूहाली और ओवरहेड चार्जेस कम किए जाएं। शुगर मिल्स की जानिब से किए गए मुनासिब निर्ख न मिलने पर किसानों ने गुड़ बनाने को तरजीह दे दी। गुड़ बनाने का अमल इंतहाई दिलचस्प और मेहनत तलब काम है। गुड़ की तैयारी में किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, देखते हैं कोट छुट्टा से राना मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट में। कोट छुट्टा में कमाद की फसल तैयार हो चुकी है। मुनासिब रेट न मिलने पर किसानों ने भी गुड़ की तैयारी शुरू कर दी। अब गुड़ बनाने का अमल भी जोबन पर है। रिवायती पुराने तरीके से गुड़ बनाने का अमल इंतहाई दिलचस्प और मेहनत तलब काम होता है। गन्ने के रस को मीठे खुशबूदार गुड़ में ढालने के लिए कई मराहल से गुजरना होता है। देही जिंदगी में गन्ने की कटाई, गांठों में बांधने और इनके ढेर किसानों के लिए किसी जश्न से कम नहीं होते। गुड़ की तैयारी में सबसे पहला मरहला गन्ने की खेतों से कटाई और इसे खेतों के बीचों बीच बनाए गए गुड़ साजी के आर्जी कारखाने तक लाना होता है। यहाँ गन्ने को बेलने में से गुजार कर इससे रस हासिल किया जाता है और इस रस को एक बहुत बड़े कढ़ा में डालकर इसके नीचे आग जलाई जाती है। मुसलसल कई घंटे तक आग पर पकने के बाद गन्ने का रस गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। पकने के इस अमल के दौरान गन्ने के रस में मीठा सोडा और दीगर कीमियाई मवाद डालकर इसमें से मुख्तलिफ किस्मों को अलग किया जाता है। बाद एक माहिर गुड़साज मुसलसल इसकी सतह पर जमा होने वाले झाग और दीगर किस्मों को एक छालने की मदद से बाहर निकालता रहता है। गुड़ की तैयारी के इस अमल के दौरान काश्तकार अपनी उम्र भर के तजर्बे को बरूए कार लाते हुए इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। गन्ने का रस मुसलसल आग पर पकने के बाद एक लई की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इस मरहले पर इसे ठंडा करने की गर्ज से एक लकड़े के बने हुए खुले बर्तन में डाला जाता है, जिसे कई इलाकों में अथराह कहते हैं। इसे ठंडा करने के अमल के दौरान मुसलसल हिलाया जाता है ताकि ये खस्ता रहे। जब इसकी ऊपर की सतह ठंडी होकर सख्त हो जाती है तो ये समझ लिया जाता है कि अब गुड़ की भेलियां बनाने के लिए तैयार है।
इसे लजीज तर और खुशबूदार बनाने के लिए नारियल, बादाम, मूंगफली समेत मुख्तलिफ मेवाजात भी समोए जाते हैं। फसल पर साल भर मेहनत की जाती है तो गुड़ बनाना बेइंतहाई मेहनत तलब काम है। भरपूर खुशबू, मिठास और लज्जतों वाला स्पेशल गुड़ का किसान खुद ही लुत्फ नहीं उठाते बल्कि रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को भी तोहफे के तौर पर भिजवाया जाता है। कैमरामैन आरिफ के साथ राना मोहम्मद तारिक, टीवी टुडे, कोट छुट्टा। मजीद खबरें भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूँ आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर की तर्जुमा 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पर। वेलकम बैक। और अब मौसम की सूरत हाल। मरी, गिलियात समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम हसीन हो गया। नारान, शोग्रान समेत बलाई इलाकों में भी आसमान से गिरती बर्फ ने इलाके की खूबसूरती बढ़ा दी। गिलियात और गिरदो नवा में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। हर मंजर सफेद हो गया। मरी में स्याह माल रोड पर जमा हो गए। गिलगित बिल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी का राज है। सकरदू और गोपस में पारा नुक्ता अंजमात से भी 8 दर्जे नीचे चला गया। मौसम का हाल बताने वालों ने इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। लाहौर में बूंदाबांदी का इम्कान है। कराची में भी एक बार फिर सर्दी की लहर आने को तैयार है। शहर कायद में कोयटा और बलूचिस्तान से सर्द हवाओं का नया सिस्टम दाखिल हो गया। यखबस्ता साइबेरियन हवाओं का मामूल से तेज चलने का इम्कान है। कराची में सर्दी की नई लहर 3 रोज तक जारी रहेगी। पीर महल में सर्द हवाओं ने शहरियों को फूड पॉइंट का रुख करने पर मजबूर कर दिया। शहरी ग्रिल फिश, टिक्का बोटी से लुत्फ अंदोज होने लगे। वीकेंड पर शहरी कैसे सर्दी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और क्या कुछ खा रहे हैं, इसी हवाले से बता रहे हैं अदनान अशरफ।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں پیر محل کے وسط اللہ والا چوک میں، جہاں پر سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شام ہوتے ہی شہریوں نے جو کہ باربیکیو کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ یہاں پر جو کہ عوام اور چٹکارے اٹھانے کے لیے باربیکیو کی دکانوں پر پہنچ گئی ہے۔ ہمارے ساتھ جو دکاندار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی الحمدللہ ہمارا معیار ہی پہچان ہے، ہمارے معیار کی وجہ سے لوگ دور دراز سے آتے ہیں فش کھانے کے لیے۔ ہمارا گرل فش، ٹکا، کباب، پیس، ملائی بوٹی کا معیار ہے۔ الحمدللہ کسٹمر دور دراز سے آتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں کھانے کے لیے، اور 20-25 منٹ لگتے ہیں فش تیار ہونے میں۔ جی جیسا کہ آپ نے دکاندار کی بات سنی ہے کہ یہاں کا جو معیار ہے وہی ان کی پہچان ہے۔ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ آ کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو کہ یہاں پر شہری بھی موجود ہے جو ان سے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہیں گے اس والے سے؟ جی میں اپنے دوستوں کے ساتھ موسم کو انجوائے کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہم نے اپنا آرڈر اندر کھایا بھی ہے، لیکن ان کا معیار دیکھ کے ہم نے اپنے گھر کے لیے پارسل بھی منگوایا ہے، پارسل آرڈر کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے کافی رش لگا ہوا ہے، ہم نے اپنے آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں اپنا پارسل لینے کے لیے۔ ہم یہاں پہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، کافی رش ہے، اور جیسا کہ ان کا معیار بہت اچھا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ کافی رش لگا ہوا ہے۔ جی کافی زیادہ رش لگا ہوا ہے یہاں پر۔ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی شہری موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہیں گے اس والے سے؟ جی ان کا بڑا اچھا معیار ہے یہاں پر۔ ہم روزانہ آتے ہیں، 1-2 بار دوستوں کے ساتھ بھی آئے ہیں، ادھر کھانا کھایا، اب گھر والوں کے لیے فشری آرڈر کی ہوئی ہے، سامنے پڑتی ہے۔ جی جیسا کہ شہریوں کی بات سنی ہے کہ انہوں نے خود بھی یہاں پر مزے اٹھائے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے پارسل بھی لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں پر جو کہ ان کی گرل فش ہے، کوئلوں پر جو بنتی ہے، اس کا جو مزہ ایک الگ ہی یہاں پر ہوتا ہے، جو کھانے میں ایک الگ دوالا جو مزہ دوالا کر دیتا ہے۔ دور دور سے لوگ مچھلی کھانے کے لیے آتے ہیں۔ عدنان اشرف جٹ تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ، اور اب عالمی افق سے خبریں ہیں۔